السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آج سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہوں جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جسے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، آپ کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر ہم نیشنل میڈیا کو دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیں، اور ہمارے جو مذہبی رجحانات رکھنے والی جو جماعتیں ہیں، جسے ہم دینی جماعتیں کہتے ہیں، ان کے نقطہ نظر سے تو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا سراہا جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کو، اور ملک کے مفاد میں بات کی جا رہی ہے، اور لوگوں نے اس کا جو علماء تھے انہوں نے یوم تشکر بھی منایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمین شریفین کی تحفظ میں، اس کی سیکورٹی کے لیے پاکستانی افواج ایک بہت بڑا احسن اقدام ہے اور قابل سعادت ہے، بلکہ یہ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارا جیو جغرافک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس ساری چیزوں کو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑا پازیٹیو ہے۔ تو اس میں پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بھی انڈورس کر رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی، اور پاکستان کا وقار بھی اس میں کافی بلند ہوا ہے۔ اسپیشلی جو انڈیا پاکستان کے ساتھ 3-4 دن کی وار ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایج ملا ہے، تو اس نقطہ نظر سے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اس کو تھارولی دیکھیں نا، پوری انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو سامنے رکھیں، اور جیو اکنامک کو سامنے رکھیں، اور جیو اسٹریٹجک کو سامنے رکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 پہلو بنتے ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، پھر اس کی حقیقت جو ہے سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ ایک پہلو تو یہ ہے جو کرنٹ سینیریو ہے، جس میں اسرائیل کا غزہ میں حملہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، صحیح۔ وہاں پہ نسل کشی ہوئی ہے بہت سارا۔ جی۔ پھر اس کے بعد حالیہ حملہ جو ہے اسرائیل کا قطر کے اوپر، بالکل۔ اس میں ایک انسیکیورٹی پائی گئی جی جی۔ عرب ممالک میں، یو اے میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ سے پاکستانی عوام کو براہ راست کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح۔ کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر نیٹو کی فورسز ہیں تو ان میں جو ان کے ممالک کے شہری ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، ان کی آپس میں نقل و حرکت جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ اسی طرح یورپین کو دیکھیں تو وہ تو ایک باقاعدہ ایک ان کا پیکٹ ہوا ہے نا، جس میں انہوں نے ایک کرنسی اور اس کے بعد فری بارڈر کر دیا، جی جی، بالکل اکانومی صحیح۔ ان کی ایک ہو گئی ہے، اور ڈیفنس بھی ایک ہو گیا، ان کے شہریوں کو آنے جانے میں، کہیں بھی کام کرنے میں کوئی ان کو دشواری نہیں کوئی ہے۔ دشواری نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اگر اس سینیریو میں کیا پاکستان کی عوام کو براہ راست اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ایک تو یہ پہلو ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت لمبا دور رہا ہے جس کو آمریت کا دور کہتے ہیں۔ 1958 میں جو معاشرہ لگا تھا ایوب خان، اور تقریباً پھر اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، پھر اس کے بعد ہم ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھتے ہیں، وہ ایک سول دور تھا۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آئے، پھر جہاد افغانستان ہوا، تو وہ دور، پھر اس کے بعد پھر سول دور آیا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف، پھر پرویز مشرف صاحب آئے۔ تو ہم اس کو ایک دور تو ہم کہیں گے آمریت کا دور، ایک دور ہم کہیں گے سول گورنمنٹ کا دور، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک پہلو جو ہے وہ آمریت کا ادوار ہے، دوسرا پہلو سول گورنمنٹ کا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں امریکہ کا کردار کیا تھا، صحیح۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو سینیریو ہے اسرائیل اور قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، اس میں امریکہ کا کردار کیا ہے۔ ہم جب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے نا تو پھر ہمیں اس کی سامنے نظر آئے گا کہ ہم اس کا ایک پورا جو ہے نا انالیسس کر سکتے ہیں، اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہیں، باریک بینی سے ہم اس کو دیکھیں گے، پھر ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے پورا نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کا دور، اس کے بعد ضیاء الحق کا جہاد افغانستان، اس کے بعد پرویز مشرف کا 9/11 اور وار انگیز ٹیرر، جب اس سب چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کردار امریکہ کا یہ ہے کہ پاکستان پہ امریکہ کا جو ہے اثر رہا ہے، اور جو کچھ امریکہ جو پالیسیز جو تھی اسی پالیسیز کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا، اور ایوب خان کے دور میں بھی اڈے دیے گئے، ضیاء الحق کے دور میں بھی پورے اڈے دیے گئے، لاجسٹک سپورٹ دی گئی، 11 سال جہاد افغانستان ہوتا رہا، اس کے نتائج کیا نکلے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف کا دور ہے، اس میں بھی ہم نے ان کو ساری جو ہے لاجسٹک سپورٹ بھی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے اڈے بھی دیے، اور پھر ہم نے دشمن بنائے،
उन लोगों को दुश्मन बनाया जिन्हें हमने मुजाहिदीन बनाया था, जिन्हें हम असला दिया था, जिन्हें हमने उनकी जेबों में डॉलर डाले थे, फिर जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी, हमने फिर उनको दहशतगर्द करार दिया। वो फिर तालिबान की शक्ल में हमारे दुश्मन, जिसे हम टीटीपी कहते हैं, वो भी है। वो फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वो भी है, वो भी हमारे अगेंस्ट है। एक तरफ हमारा जो है मशरकी बॉर्डर है, अगर जो इंडिया के साथ है, तो दूसरी तरफ जो है हमारा ये अफगानिस्तान। हम इन दोनों में हमें अब आजमाइश में हम पड़े हुए हैं। सही बात। इसी दौरान अगर हम देखते हैं तो इजराइल का गजा पे हमला, उसके बाद कतर पे हमला, तो इन चीजों को हम सामने जब रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ ट्रंप का जो है ना, बार बार हमारी दो बड़ी शख्सियात की तारीफ करना बिल्कुल, और इंडिया के साथ जहाज गिराना, और एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा अपना जाती ख्याल है कि जैसे वो एक बहुत दूर अंदेशी के साथ किसी पॉलिसी के तहत वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं आने वाले फ्यूचर में कि जैसे पाकिस्तान को ट्रैप किया जा रहा है। सही। और हो सकता है पाकिस्तान इस ट्रैप में आ जाए। अब मैं ये क्या इस जो सिनेरियो की बात कर रहा हूं, अगर हम देखते हैं इजराइल का कतर पे हमला, ये दूसरा पहलू है। हम दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं, दूसरे पहलू में हमें साफ नजर आ रहा है कि कतर पे हमला, अमेरिका का वहां पे बेस है, पूरे सऊदी अरेबिया में भी है, अमेरिका की फौज भी सऊदी अरेबिया में है, बहुत ज्यादा फौज कतर में भी है, फिर तालिबान का वहां पे एक ऑफिस भी है, उसके बाद यूएई में भी जो पूरा असर रसूख है। तो इन सारे असर रसूख, उनका जदीद तरीन असला, उनकी जदीद तरीन बरी बैरी फजाई अफवाज के तमाम नेटवर्क जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में और इजराइल का हमला करना और कतर के ऊपर जहां पे अमेरिका का अपना अड्डा मौजूद है, तो ऐसा महसूस होता है कि ये एक प्री प्लानिंग थी जिसको अमेरिका की रजामंदी के साथ ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। ये बिल्कुल आप इसको इस तरह से इस चीज को आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं जैसे सद्दाम हुसैन ने और कुवैत के दरमियान एक कुएं के ऊपर झगड़ा था, तो सद्दाम हुसैन को शह दी गई और वो कुवैत पे उसने हमला कर दिया। ऐसा ही। उस कुवैत के हमले को जवाब बना के पूरे नेटो फोर्सेस अमेरिका वहां पे दाखिल हुए। तो आज देख लो उसका क्या नतीजा है। हम सऊदी अरेबिया जो है, अब उसका डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमेरिका के पास है, बल्कि पूरे गल्फ की कह सकते हैं। अब इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की अफवाज उनका क्या दिफा कर सकती है? उनके सारे बेस होने के बावजूद, यानी कि फजाई, बहरी और बरी, बड़ी फौज भी उनकी मौजूद है, बहरी भी मौजूद है, उनके अड्डे मौजूद है, फजाई उनका नेटवर्क सारा, एयर बेस और जो उनका डिफेंस सिस्टम वो सारा उनका है। उनके होते हुए पाकिस्तान वो किरदार क्या अदा कर सकता है जो इस मुआहदे में नजर आता है? तो जब हम इसको देखते हैं फिर हमें इस मुआहदे की अफादियत जो है ना वो नजर नहीं आती। ऐसा ही है। और जिस वक्त हम देखते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान अगर मुआहदा हुआ है, ये एक जस्ट एक एग्रीमेंट है जो किसी वक्त खत्म हो सकता है। आपने एक दफाई मुआहदा होता है, जैसे इंडिया ने अमेरिका के साथ अभी मुआहदा किया है 10 साल का, उससे पहले उसका रशिया के साथ भी था दफाई मुआहदा, जैसे नेटो का है आपस में, जैसे यूरोपीय यूनियन है। तो अगर इस तरह का कोई मुआहदा होता तो हम तो फिर उसको हम किसी दूसरी नजर से देखते, लेकिन हम इसको देखते हैं कि एग्रीमेंट को जो किसी भी वक्त एक अनाउंसमेंट के जरिए खत्म हो सकता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि इसके साथ हमें पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त क्या फायदा हो सकता है। ऐसे ही। मुझे पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा इसलिए नजर नहीं आ रहा कि हमारे जो उम्रा के ज़ायरीन है ना, कि जो वीजा आसानी से मिल जाता था उसको इतनी मुश्किल डाल दिया गया है कि पहले सिर्फ वीजा मिल जाता था, फिर अब उसके साथ यह है कि आप ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग, ये मस्त ये बड़ी एक उन्होंने सिस्टम बना दिया है जिसमें बहुत मुश्किल कर दिया है और वीजे की प्राइस भी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हम यूरोप यूके को देखते हैं, वहां पे अगर उम्रे के ज़ायरीन हमारे ही मुसलमान अगर वहां से जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, उनके पोर्टल के ऊपर, उनकी ऐप के ऊपर वो वीजा अप्लाई करते हैं, 1 ईयर का मल्टीपल वीजा मिल जाता है। तो पाकिस्तान को यह भी सहूलत नहीं है कि उम्रा पर जाने के लिए जो
मोतमीरीन हैं जी जी वो 30 डेज के लिए वन सिंगल एंट्री के लिए ऑनलाइन वीजा ले सकें, बिल्कुल ये भी सोर्स नहीं है। तो जब माशी तौर पे हम देखते हैं तो इसमें एग्रीमेंट के जरिए वो हो सकता है पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन द शेप ऑफ मनी कह लें, इन द शेप ऑफ ऑयल कह लें, जी तो जी इस तरह की सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन इस एग्रीमेंट का फायदा पाकिस्तानी अवाम तक नहीं है। सही अगर ये अवाम तक फायदा पहुंचता है ना तो फिर इसकी जो है ना अफादियत बढ़ जाती है। बढ़ जाती ठीक है, तो इस तीन पहलुओं को जब हम देखते हैं, एक अमेरिका का किरदार पाकिस्तान में जो आमरीत का दौर है, और दूसरा किरदार अमेरिका का जिस वक्त सिविल हुकूमत है। सिविल हुकूमत में मैंने वो खुल के अमेरिका के किरदार की बात तो नहीं की ना, अमरीत की मैंने कर दी, लेकिन जब सिविल दौर में देखते हैं, सिविल दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर नाटका बंद किया है। जो ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्लांट का आगाज किया, डॉक्टर अब्दुल कबीर खान को लेके आए, उसके बाद फ्रांस के साथ एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा किया, तो अमेरिका तप गया और उसने कहा कि इसको कैंसिल करो। उसने फ्रांस पे दबाव डाला। उसके बाद हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आया, उसने यहां पे आके कहा कि आप इस मुआहदे को कैंसिल करें वरना हम आपको इबरतनाक मिसाल बना देंगे। ये हेनरी किसिंजर का उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर है जो उसको धमकी दे गया भुट्टो को, और फिर उसके साथ क्या सलूक हुआ ये आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। उसमें तो अमेरिका ने ये किरदार अदा किया। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर आता है, तो उसमें जब ये सारी मिसाइल प्रोग्राम की बातें होती हैं तो उस वक्त पाकिस्तान पे तजारती पाबंदियां, एक प्रेस अमेंडमेंट होती है स्पेशली जिस पर पाकिस्तान पे तजारती पाबंदियां लगाई जाती हैं। सही बिल्कुल उसमें तो उसका कोई किरदार अदा नहीं किया जाता। फिर नवाज शरीफ का दौर आता है 1998 में। उस वक्त वो एटमी धमाके करने का जब इरादा करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उस वक्त पूरे यूरोप अमेरिका का दबाव आया और क्लिंटन ने बड़ी ऑफर उस वक्त की हुकूमत को दी कि आप ये धमाके ना करें, लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके जो थे वो 28 मई 1998 को वो कर दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर अमेरिका ने और यूरोप ने पाबंदियां लगा दी। हमारे यहाँ पे देखें जितने फॉरेन अकाउंट है वो सीज हो गए थे हमारे लोगों के, बिल्कुल और बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त हुई हैं उस वक्त लोगों ने की है। इसका मतलब जब हम बैसियत सिविल गवर्नमेंट देखते हैं और अवाम की बराह वेलफेयर के ऊपर जाते हैं, तो हम देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर तजारती पाबंदियां भी लगाता है और पाकिस्तान का जीना भी मुश्किल कर देता है। जो ही अमरीत का दौर आता है, अमेरिका मेहरबान हो जाता है और उनको जनाब बड़े फंड अड्डे देते हैं। अयूब खान में भी, अयूब खान के दौर में, और जब जियाउल्लाह का दौर आता है तो फिर उस वक्त जनाब खुले आम डॉलरों की तकसीम होती है और बड़ी इमदाद मिलती है, और हम उसको कहते हैं हमारी इकानमी बेटर हो गई है। ये नहीं कि हमने कोई किसी की जंग अगर पढ़ाई लड़ी है तो उसमें अगर पैसा आ रहा है, वो हमारी इकानमी वक्ती तौर पे एक बबल की तरह होती है। सही बात। हमारी अपनी इंडस्ट्री, हमारा अपना रेवेन्यू, हमारी अपनी कारखाने, हमारे लोगों का रहन सहन, जिंदगी, मियारे जिंदगी, उसमें कोई इजाफा, को बुलंदी को हुई है? तो उसमें तो नहीं हुई। ये तो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अपने बड़े बड़े बाहर के मुल्कों में जाके बड़े बड़े उन्होंने अपने कारखाने, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बना लिया। अभी आप देख लें, एजाजुल्लाह को देख लें, और जनरल अब्दुल रहमान के बेटे जो हैं, हारून हैं, और दूसरे जो हैं, इनको देख लें, इनके पास इतना बड़ा पैसा कहां से आया? यही उसी दौर की कमाई है। ठीक है, तो उसमें तो अमेरिका उनको बड़ा पैसा। फिर जब 9/11 होता है तो उस वक्त दहशतगर्दी को मारने के लिए जो पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ को लिया था, बड़े फिर कोलिशन फंड्स दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे बड़ा कोलिशन फंड्स हुआ है। लेकिन जब फिर सिविल हुकूमत आती है, नाटका बंद कर दिया जाता है तजारती पाबंदियां। तो जब हम इन तीन पहलुओं को सामने रखते हैं, मैं अपने तौर पर कहता हूं, मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी चाल है, उस चाल में पाकिस्तान को फंसाया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है तालिबान और इंडिया, यानी कि अफगानिस्तान, इंडिया, और एन मुमकिन है ईरान को भी साथ शामिल कर लें, किसी तरीके से पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उस सलाहियत को से महरूम करना तो नजर आता है। ठीक। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान अवाम को खुशहाली करे। ठीक है, दुआ गो हूं अल्लाह ताला हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो अपने रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, और पाकिस्तान को ता क़यामत पाकिस्तान जो है वो मतलब जिंदा हो, पाइंदा रहे।